11th question. Fifth term from the end in the expansion of x minus 1 upon x to the power 12. The question is x minus 1 upon x whole to the power 12, fifth term from end. The formula is rth term from end is t n minus r plus 2th term. n minus r plus 2th term. तो यहां पर क्या होगा? सो 12 minus r plus 2th term from beginning, and that is t 12 plus 2 4 14. r is here the 5 and 7, then t 9th term it wanted, t 9, n that is 12 minus r it wanted 5th plus 2, that is the part of the formula. So 12 minus 5, 7 plus 2, and then it is equal to, that is equal to 12. अब उसके बाद से 9th term है, then 12c8 1 लेस करके बोलते हैं x to the power 12 minus 8 into minus 1 by x to the power 8, that is 12c4 x to the power 4 into 1 by x to the power 8, and that is 12c4 x to the power 4 x to the power 8 means into 1 upon x to the power 4. You can compute 12c4, that is 12 into 11 into 10 into 9, 4 steps तक डाउन करते हैं, and this upon 4 into 3 into 2 into 1 into 1 upon x to the power 4, minus has been plus here, minus 1 to the power, and that you compute. The next 12, x plus 1 by x whole to the power 10, whole to the power 10. What do you want? What do you want? हाँ नहीं, 10th आप लिखाएंगे, हम क्वेश्चन अभी नहीं पढ़ पाए. हाँ 12th में find the middle term in each of the following. एक ही है x plus 1 by middle term. That is middle term, that is t 10, the middle term equal to 10 plus 10, that is the middle term होगा 10, यानी टोटल होगा 11, टोटल टर्म होगा 11, तो एक ही आएगा ना, इसलिए 10 plus 2 by 2, 10 plus 2 by 2, and that is 6th term. 6th term. If n is even, I have told you, if n is even, then n is even, there n is even, then n plus 2 by 2, or n is odd, then n plus
1 by 2 and n plus 3 by 2. Here it is what? Even. So 10 plus 2 by 2, sixth term, and therefore T6 equal to 10C5, one less, x to the power 10 minus 5 into 1 by x to the power 5, that is 10 into 9 into 8 into 7, 1 2 3 4, हमें 5 स्टेप्स तक डाउन करना है. देखो 5 स्टेप 10 9 8 7 6 होल अपॉन 5 4 3 2 into x to the power 5 upon x to the power 5 cancelled, then 5 into 2 10 कैंसिल हो गया, 3 into 3 कैंसिल हो गया, 4 into 2 इधर कैंसिल हो गया, and then that is then it is 6 into 7 into 6, and that is 216 into 7, and that is क्या हो रहा है 216 में 7 का that is 10C5 कमिंग 252, पता नहीं कैसे ये 10C5 जनरली 1 2 3 4 5 and that is that's not coming. just wait जरा समय फिर से किनार कर लूँ. 10C5 मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे याद हो रहा है कि 252 ही आता है, फिर भी कर ले रहा हूँ. 10C5 10 into 9 into 8 into 7 into 6, ठीक है. 10C5 upon 5 4 3 2, ये है 5 into 2 10 and 3 into 3 and 4 into 2, then 36 into 7 कहाँ से 207 36 ना, वही कह रहा हूँ कि मुझे बराबर याद रहता है. याद कुछ रहते हमें. 10C5 that will be 252 and then answer. The next, so that there is अच्छा, तो उनमें नहीं करूंगा, ऐसे ही ऐसा ही है. ये कह रहा है फाइंड द कोफिशिएंट एज डिजायर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. कोफिशिएंट ऑफ x to the power 10 here, कोफिशिएंट ऑफ x to the power 17 here, and find the independent term of x. 17 here, 18 here, 19 here, 19. तो 19 कर दे रहा हूँ. 20 अभी बता दूंगा क्यों 19 कर रहा हूँ, क्योंकि सब वैसे ही है. एक कर रहा हूँ. Why 19? 19 अभी बताऊंगा. तो ये कह रहा है इंडिपेंडेंट टर्म इन x minus 1 by x square whole to the power 3n. Independent term that is equal to coefficient of x to the power 0. अब जरा से इसके ऊपर दिखला देंगे तो हाँ, ऊपर वाले क्वेश्चंस. हाँ देखिए, फाइंड इंडिपेंडेंट टर्म तो है, तो वो तीनों एक साइड से हो जाएंगे. ये देखिए 15 क्वेश्चन, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10. यानी हम यहां करेंगे x टू द पावर 0, तो जो जहां जैसे करेंगे, तो मैं जहां 0 रखूंगा वहां वैसे ही आप 10 रखेंगे. कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 17, जहां मैं x उतना 0 रखूंगा वहां आप 17 रखेंगे. इसलिए एक ही टाइप का. दैट्स व्हाई आई रीच टू क्वेश्चन नंबर 19, x माइनस 1 बाई. हाँ
अब देख रहा हूं, अब ऐसे लिखूंगा, लेट r प्लस 1th टर्म हैज द टर्म x टू द पावर 0। हम कहेंगे कि r प्लस 1th टर्म है, हम जान नहीं रहे हैं, लेकिन मैं मान रहा हूं कि r प्लस 1th टर्म x टू द पावर 0 है। तो देखूं देयरफॉर इन x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, देखना वही है ना, x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, जरा देखना तो 19 में 19 x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3n, द r प्लस 1th टर्म t r प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3nc r प्लस 1 लेस करके x में उतना ही हटाते हैं, कम करते हैं, यानी 3n माइनस r, दूसरे वाले में यानी माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर उतना ही चढ़ा देते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू 3ncr x टू द पावर 3n माइनस r इंटू, यह बाहर निकाल दे रहा हूं माइनस 1 टू द पावर r, दिस माइनस 1 बाहर निकाल ले रहा हूं, और x इंटू एक्स टू द पावर माइनस 2r। कैसे? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा माइनस 2r, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर r 3ncr x टू द पावर 3n माइनस 5r (3n) ठीक तो है, माइनस 2 और 3r, कहाँ से माइनस r कर दे रहा हूँ, x टू द पावर, तो 3n माइनस r और x टू द पावर माइनस r यानी माइनस 3r। बट जैसा मैंने प्रिज्यूम किया था, x टू द पावर 3n माइनस 3r इक्वल टू एक्स टू, मैंने यही कहा था इसमें x टू द पावर 0 आना चाहिए। हम मान ले रहे हैं कि इसमें x टू द पावर 0 है, लेकिन हुआ नहीं। क्या आया हमारा? 3n माइनस 3r। तो हम कहेंगे भैया x टू द पावर 0 हमने माना था, लेकिन तू तो आया ये, इसलिए 3n माइनस 3r इसके ऊपर, तो देन 3n माइनस 3r इक्वल हो जाएगा एंड r इक्वल टू n, r इक्वल टू n। अब r को हम वहां पर रखेंगे, लास्ट वाले में रखते हैं। सो पुट दिस इज 1, पुटिंग r इक्वल टू n इन फर्स्ट that is equal to minus 1 to the power n 3ncn and x to the power 0. Then what is the coefficient? So coefficient of x to the power 0 are independent term x to the power 0 मतलब independent term, that is what this is। x to the power 0 है तो कहेंगे माइनस 1 टू द पावर n 3ncn। जरा देख लेना बच्चों, आप लोगों को कहीं पर कोई करने में तो गलती नहीं हुई, अटेम्प्ट में तो कोई गलती नहीं हुई। द नेक्स्ट मैंने ये कहा था 920 शो दैट देर इज नो टर्म, एक समान है, तो हम 20th कर दे रहे हैं। 20th इज, देर इज नो टर्म, प्रूव ये सब हटा, थोड़ा ऊपर करते हैं तो क्या होता है कि जगह मिलती है, वो सब लिख करके
20th question. That is, there is no term involving x to the power 4. 20th क्या कर, there is no term ये तो अच्छा तो दोनों कर दूंगा 20th. There is no term independent of x, 2x square minus 1 by 2x whole to the power 11. कह रहा there is no term independent term. How? तो कहूंगा let r plus 1, बिल्कुल वही सब जगह, has x to the power 0. वो कह रहा है there is no term x to the power 0. हम कह रहे हैं let it is having x to the power 0. तो क्या करूंगा, then t r plus 1 equal to 11 c r. इसका बढ़ाएं, इसको घटाएंगे, 2x square to the power 11 minus r into minus 1 upon 2x to the power r. सेकेंड वाले में चढ़ा देते हैं पावर और फर्स्ट वाले में उतना ही घटा देते हैं. तो देखो r plus 1 था, एक लेस किए, 2x square 11 एंड दैट इज इक्वल टू 11 सी आर 2 to the power 11 minus r. यहां पर minus 1 to the power r. कौन माइनस, ये ले लिया और ये 2 to the power. अब उसके बाद कर रहा हूं x to the power 22 minus 2r. मल्टीप्लाई होता है ना, जब पावर पर पावर चढ़ता है तो मल्टीप्लाई होता है. तो 22 minus 2r 1 by 2 कर दिया था नहीं क्या, इसको भी बाहर ले लेना था, माइनस 1 by, इसको भी कर दे रहा हूं माइनस 1 by 2. ये यानी ये पूरा ले लिया और तब x to the power और 2 तो लिया ही हूं, ठीक है, माइनस 1 by 2 to the power r और 11 CR बिल्कुल. अब यहीं पर अब बच गया x, तो x इज 22 minus 2r एंड माइनस r. कहां तक एक आध लाइन और जाओ, अरे 1 by x है ना, तो x का पावर 1 by x का पावर है तो x का पावर, हाँ, तो देन दिस इज माइनस 1 by 2 to the power r 11 CR 2 to the power 11 minus r x to the power 22 minus 3r. हमने कहा है कि ये x to the power 0 होना चाहिए. हमने कहा है कि let x to the power r plus 1th term has x to the power. तो r plus 1th term निकालते निकालते ये हुआ, here x to the power 22 minus 3r should be equal to x to the power 0. So 22 minus 3r equal to 0. So r equal to 22 by 3. अरे ऐसा कैसे हो सकता है, r 22 by 3. हम काउंटिंग है ना बेटा, r काउंटिंग है ना, 5th टर्म, 9th टर्म, 10th टर्म, 6th टर्म, 11th टर्म, यानी काउंटिंग है ना, तो r कहीं 22 by 3 पॉसिबल है क्या, सिंस इट इज इन फ्रैक्शन. काउंटिंग में ये नहीं होगा ना कि आपके क्लास में करीब करीब 40.5 बच्चे हैं, या तो 40 होंगे या 41 होंगे, साढ़े पौने में नहीं होंगे. तो दैट्स वाई it cannot be, but r cannot be in fraction. So r equal to 22 by 3 not possible. और वही वो कह रहा है not possible. वो क्या कह रहा है 20th में क्या कर रहा है, प्रूव दैट देयर इज नो टर्म. तो हमने निकाला और देखा कि नो टर्म है भाई, ये तो x to the power 0 आया ही नहीं. जब हमने माना तो r की वैल्यू कुछ दूसरी आ रही है. ऐसे ही बेटा जब हम 21st करेंगे और बल्कि ना करूं तो अच्छा है, प्रूव देयर इज नो टर्म इन्वॉल्विंग x to the power 4. तो मैं इसे कैसे करूंगा, 21st की बात कर रहा हूं, लेट, हल्का सा लिख दे रहा हूं, आई विल नॉट डू इट कंप्लीटली. आप खुद ही समझ रहे होंगे कि नहीं सर ये पॉसिबल नहीं है. फर्स्ट
21st क्या है, एक्स स्क्वायर मैं पूरा करूंगा ही नहीं, अपॉन 2 प्लस 1/x होल टू द पावर 9। हम कहेंगे लेट आर प्लस, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कोफिशिएंट निकालते हैं, जैसे एक्स टू द पावर 0 निकालते हैं, सब में लेट आर प्लस 1th टर्म हैज एक्स टू द पावर 4। तो हम देखेंगे 9CR प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 9CR एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 होल टू द, बिल्कुल 1 हम हटाएंगे और वैसे ही 1/x चढ़ा देंगे, यानी 9CR इंटू 1/2 टू द पावर 9 माइनस ये 1/2, अरे ये इतना, ये 1/2, इसको अलग हटा दे, केवल x लिख रहा हूं, देन x टू द पावर 18 माइनस 2r माइनस r यानी ये हुआ 9c, कर ही देता हूं मैंने, हमारा गड़बड़ रहता है कि मैं बराबर कर देता हूं x टू द पावर 18 माइनस 3r। तो 18 माइनस 3r कितने के बराबर होना चाहिए? नाउ x टू द पावर 18 माइनस 3r इक्वल टू x टू द पावर 4। वो कह रहा है कि x टू द पावर, हमने तो कहा था r प्लस 1th टर्म होना चाहिए, तो आया, तो हमने लिख दिया कि ये, और इससे इसको निकालते, बट 18 माइनस 3r इक्वल टू नॉट 4, देखो ना 3r equal to 14, so r equal to 14/3, again in fraction, so not possible। r अगर आता 9 तो हम कहते 9th टर्म होगा, अगर मान लीजिए r आता 4 तो मैं कहता कि 4th टर्म होगा। अरे वो तो r बिल्कुल अपना मूड ही दिखा दिया करे भाई, मैं तो चलूंगा ही नहीं। नाउ if the fourth term in the expansion is 5/2, find the value of n and a, करिएगा बेटा 22। देन नेक्स्ट, हाँ जी, नेक्स्ट 23rd यूजिंग, हाँ, बाइनोमियल थ्योरम। Which one? 23. 2 to the power 3n, 23, 2 to the power 3n minus 7n minus 1, prove that is divisible by किससे? 49 से। तो देख रहा हूं 2 to the power 3 whole to the power n minus 7n minus 1 expression, that is 8 to the power n minus 7n minus 1, that is 1 plus 7 whole to the power n minus 7n minus 1। ये तो उसको कुछ नहीं, वैसे 2 to the power 3 to the power n होता है ना, तो 2 to the power 3 is 8 to the power n, 8 को कर दिया 1 plus 7। क्यों सर 2 plus 6 नहीं किए? इसलिए कि 7 है यहां पर, तो जब करूंगा तो कुछ न कुछ कैंसल होगा, दैट इज 1 plus nc1 7, nc2 7 square, nc3 7 cube plus ncn 7 to the power n minus 7n minus 1। वाह सर, nc1 यानी n, so 1 plus 7n plus nc2 7 square plus nc3 7 cube plus ncn 7 to the power n minus 7n minus 1। What remains? What remains? What remains? 7 square is 7 square multiple, बाकी सब में 7 square कॉमन है, nc2
प्लस 7 इंटू NC3 प्लस डैश 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 एंड लास्ट में प्लस 7 टू द पावर n माइनस 1, 7 टू द पावर n में NCN। हाँ, 7 स्क्वायर तो सब में है, 7 स्क्वायर सब में है। देखो 7 स्क्वायर यहां भी, इसमें भी 7 स्क्वायर है, उसमें भी 7 स्क्वायर है, लास्ट में मैंने लिख ही दिया 7 स्क्वायर ना, 7 स्क्वायर यानी n-2। तो क्या, therefore expression is divisible by 7 square, that is equal to, that is 49। मैंने 7 स्क्वायर सब में कॉमन हुआ ना, तो 7 स्क्वायर से तो डिविजिबल होगा, सो इट इज। ऐसा क्वेश्चन आगे भी करेंगे तो ऐसे ही कर देंगे। शायद यहां पर देखिए कोई क्वेश्चन है क्या, जरा उस तरफ ले जाइए। तो ये दैट टू टेक, जरा सा उधर सरकाइए। हाँ, यस 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 द कोफिशिएंट ऑफ सेकंड AP। और कोई है क्या, और देखूं, और बहुत 40th क्वेश्चन। हाँ, मैं करूंगा नहीं, मैं कह नहीं सकता कि कभी कभी क्या होता है कि एक लाइन किया तो उसके बाद सब करता हूं, लेकिन मन नहीं है करने का। तो क्या होगा 3 टू द पावर 2n माइनस, देख ही लेता हूं 3। क्वेश्चन 40 बैक में आऊंगा अभी। हाँ, 40th, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम 3 टू द पावर 2n minus 8n minus 1 is divisible by 64। तो 3 टू द पावर 2 यानी 9, मतलब ये देखना। तो देन एक्सप्रेशन इक्वल टू 3 स्क्वायर होल टू द पावर n माइनस 8n माइनस 1। दिस इज 9 टू द पावर n, या 9 नहीं, हम डायरेक्ट कर देंगे 1 प्लस 8 टू द पावर n माइनस 8n माइनस 1। बेटा उसी तरह चलिए एक लाइन और रख दो तो हो गया। 1 प्लस NC1 8 प्लस NC2 8 स्क्वायर, NC3 8 क्यूब, और ऐसा ही NCN 8 टू द पावर n। यहाँ पर NC, हाँ ये तो हुआ माइनस 8n माइनस 1। ये और ये कैंसल हो गया, तो फिर क्या रहा कॉमन, 8 स्क्वायर NC2 NC3 8 स्क्वायर तो 8 बचा, प्लस NC3 8 स्क्वायर ऐसे ही बचता जाएगा, लास्ट में NCN 8 टू द पावर n minus 2। Since previous question, like since it is divisible by 8 square, that is 64, I'll not write another line। 8 square is 64 है ना, और 8 square is the multiple of the entire expression। 8 square means 64, so it is divisible by 64। back to previous questions। कहाँ पर हम लोग थे, हाँ चलिए, हाँ 24, हाँ 23 I had done, 24 25 कुछ एक आध छोड़ा है ना, 25 देख लो, 25 25 show that the coefficient of x to the power m, coefficients of x to the power m and x to the power n in
1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n और इक्वल, तो कोफिशिएंट, अच्छा एक और हम बता दें, आपको बताया होगा नहीं बताया हूं आपको, x प्लस a टू द पावर n किया था ना, x टू द पावर n प्लस एन सी वन एक्स टू द पावर n माइनस वन ए एन सी टू एन सी एक्स टू द पावर n माइनस टू ए स्क्वायर एन सी आर एक्स टू द पावर n माइनस आर, यानी x में से जो घटाया वही a को चढ़ाया। ऐसे ही बेटा 1 प्लस एक्स टू द पावर n में, चलिए x मान लीजिए यही है और a यहां पर है, तो करेंगे 1 पावर n प्लस एन सी वन एक्स टू द पावर, हाँ 1 टू द पावर n माइनस वन, अरे ये x है ये a है मान लो, तो 1 टू द पावर n माइनस वन लिखूं कि ना लिखूं, चलो एक बार लिख दे रहा हूं, n माइनस वन और x टू द पावर n, देन एन सी टू 1 टू द पावर n माइनस टू एक्स स्क्वायर एंड प्लस एन सी एन 1 टू द पावर n माइनस n एक्स टू द पावर n। ये तो बड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा है 1 का पावर, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 1 प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस प्लस एन सी एन एक्स टू द पावर n। इसको 1 को मैं एन सी जीरो भी लिख सकता हूँ, एन सी जीरो इज आल्सो 1। खैर ये है 1 प्लस एक्स टू द पावर n का, ये है एक्सपांशन, तो डायरेक्ट हम लोग कहीं कर दिया करेंगे। अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं इस एक्सप्रेशन में व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5, आप कहेंगे nc5, क्यों? क्योंकि nc2x स्क्वायर, तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5, nc5। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n, ncn। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 3, nc3। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0, nc0, जो लिखा नहीं। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 8, nc8, जो भी होगा। तो हम देखें, अब आ जाऊं, यानी ये भी एक प्रकार से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, तो मैं वहां कर रहा हूं इन 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n कोफिशिएंट, बिल्कुल जो समझाएं उसी तरह से, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर m इज इक्वल टू m प्लस NCM, अभी समझाया हूं ना। Here, what is the coefficient of x to the power, NC2? What is the coefficient of x to the power 1, NCM? तो जब m plus n है तो coefficient of m is m plus NCM। Further, coefficient मैं कर नहीं रहा हूं, करूंगा तो भी 2-3 लाइन के बाद आएगा, लेकिन why to do 1 plus x to the power, हाँ ये तो एक्सप्रेशन ने समझाया है ना, ये समझाया है इन वर्क्स कोफिशिएंट ऑफ x to the power n, x to the power n, that is equal to m plus n, x to the power m is m to the power m or m plus n cn। Coefficient of x to the power n, m plus n cm। Coefficient of x to the power n, m plus n cn। Coefficient of x to the power 10, m plus n c10। जो पावर हो c उतना, तो कह रहा है ये, कह रहा है prove that these are equal, prove that these are equal। To prove coefficients are equal, तो हम एक एक करते जाएं, एक बार करें m प्लस एन सी एम, दैट इज क्या होता है, NCR फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, एंड दैट इज फैक्टोरियल m प्लस n अपॉन फैक्टोरियल कोफिशिएंट m प्लस NCM फैक्टोरियल m प्लस n अपॉन m प्लस n, m प्लस n, तो हाँ तो फैक्टोरियल m इंटू m प्लस n, m प्लस n माइनस
m that is factorial n है? और m plus ncn क्या होगा? m plus ncn that is वही फार्मूला फैक्टोरियल n यानी फैक्टोरियल m plus n अपॉन फैक्टोरियल r यानी फैक्टोरियल n इनटू फैक्टोरियल n माइनस r यानी m plus n minus n that is factorial m plus n upon factorial n factorial m। ये देखो दोनों क्लियरली both are equal, both are equal, right? Now the questions are fourth and 13th term are equal and are equal, then 26, 27, 28 similar, 26, 27, 28 are similar, so 28 एकदम वही काम करेंगे जो 26 में, 27 में, 28 में नंबर्स बदलेंगे और आप कहेंगे, पहले ही मैं बता दे रहा हूं विन। अच्छा पहले क्वेश्चन लिख दूं 28 1 plus x to the power 44, 1 plus x to the power 44 21st and 22nd terms are equal, t21 and t 21st and 22nd are equal। अच्छा ये मैं कर चुका तो आप जान रहे हैं ना, इसका होगा जब 44c5 x to the power 5, 44c10 x to the power 10, 1 plus x to the power n में कोई भी टर्म nc10 लिखेंगे x to the power 10, nc50 लिखेंगे x to the power 50, ऐसा। तो यहां पर कहेंगे कि यहां पर t21 equal to 44c20 x to the power 20, t21 21st टर्म करा ना तो एक कम करके लिखेंगे, x का पावर वही चढ़ा देंगे, एंड t 22 इक्वल टू 44c21। अगर ये क्या कर रहे हैं, टर्म्स इन द एक्सपेंशन आर इक्वल देन फाइंड x, तो 44c20 x to the power 20 और यहाँ पर x to the power 21। तो अगर कोफिशिएंट्स आर इक्वल, क्या कह रहे हैं, टर्म्स इन द एक्सपेंशन आर इक्वल देन फाइंड x। वाह साहब इसको करना पड़ेगा इक्वल, उनमें से भी 2r plus 4th and r plus 12th term in the expansion, तो उनको इक्वल करेंगे तो क्या होगा कि 44 कोफिशिएंट्स आर इक्वल, द टर्म्स आर इक्वल, 22nd that is 28 21st and 22nd terms in the expansion of 1 plus x to the power 44, then 21st term 44c20 x to the power 20 and 44c21 इंटू ये इक्वल हैं, तो फाइंड x यानी 44c20 x to the power 20 इक्वल टू 44c21 x to the power 21। करो बेटा, कुछ नहीं है, ऐसा बड़ा नहीं होगा। 44 फैक्टोरियल 44 अपॉन, अब NCR फैक्टोरियल 44 फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल 20 और 44 माइनस 24 इक्वल, हाँ, दिस
this into x to the power 20 and that is equal to factorial 44 upon factorial 21 formula NCR और factorial 23। अरे 44 में से 44 में से देखो 44 factorial and then factorial 21 into 44 minus 21 तो ये हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, देन x टू और यहाँ भी ना x टू द पावर 21 तो हो गया ये x तो वहाँ पर हो जाएगा हाँ 1 अपॉन फैक्टोरियल 20 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 24 इज इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टोरियल 21 फैक्टोरियल 23 इंटू एक्स। अरे ये x20 ये x कैंसिल हो गया तो अब 20 और 21 करेंगे तो फिर से अच्छा थोड़ा सा और लिख दे रहा हूँ 1 अपॉन फैक्टोरियल 20 बड़े वाले को तोड़ूंगा, ये 21 बड़ा है तो और इसको तोड़ूंगा इंटू 24 इंटू 23 इक्वल टू 1 अपॉन ये 21 रखूंगा 21 इंटू 20 इंटू 23 ये कट गया हाँ तो इंटू एक्स तो x इक्वल टू फैक्टोरियल 20 कट गया तो क्या हुआ 24 कट गया 23 भी कट गया तो यहाँ पर रह गया 24 ये हो गया 24 तो 21 इधर चला आया x हाँ तो 21 अपॉन 24 इज इक्वल टू x and that is equal to and then x equal to 7/8। आप कहेंगे इसमें कैसे, अरे x है यार नंबर काउंटिंग का नहीं है। एक और कर दूंगा इस टाइप का तभी जरा संतोष होगा सबको। एक इक्वल वाला ही देन फाइंड x। अरे यार आप तो ये 28 अभी किया हूँ हाँ जरा ऊपर देखो 27 या 26 हाँ 26 करूँ हाँ ख़त्म करना है तो ऐसे भी तो नहीं ख़त्म करना है ना कि बस जस्ट ख़त्म कर रहा हूँ। Hmm. 26 in the expansion of 1 plus in the expansion of x plus y 25 कर दूं नहीं ये तो कर चुका हूँ 26 in the expansion of x plus y whole to the power n 26 coefficient of 4th and 13th term 4th and 13th terms are equal then 4th term t4 equal to nc3 x to the power n minus 3 y to the power 3 4th term nc3 वही लिख दिया एक कम करके लिखा x का पावर उतना ही घटाया y का पावर चढ़ा दिया एंड दिस इज इक्वल टू t5 भी लिख दे रहा हूं t30 सॉरी दैट इज इक्वल टू nc12 ना एक कम करके लिख रहा हूं x टू द पावर n minus 12 एंड y टू द पावर 12 तो क्या कह रहा है the coefficient of
हाँ, the coefficient of this NC3 according to question coefficients are equal. It means NC3 equal to NC12. देखना, ये आप कहेंगे यही क्यों कोफिशिएंट कर रहे हैं? अरे बाकी तो एक्स वाई है ना, टर्म बाकी एक्स वाई, तो इनका कोफिशिएंट तो यही होगा. बट दीज आर इक्वल सिंस वी नो, मैंने बताया है, याद नहीं होगा शायद. इफ NCX equal to NCY, then X plus Y equal to N. Therefore, यहां पर भी with this formula, therefore X plus Y, then N equal to 3 plus 12 and so N equal to 50. Answer. Coefficients are equal. They are टर्म 20 लास्ट में जो मैंने कहा था 44 जिसका पावर था, दैट इज 20. ये इसमें 20, इसमें कोफिशिएंट्स नहीं. जरा देखना, ये फर्क देखना दोनों में. ये पिछले को मैंने एक ही समान समझा, वहां कोफिशिएंट्स हैं और यहां पर टर्म्स हैं, टर्म्स ये, इसलिए इनमें फर्क है. अब चले हम, तो इसमें भी 25th में इन द एक्सपेंशन कोफिशिएंट्स हैं, बिल्कुल NCX इक्वल टू NCY, इसमें भी कोफिशिएंट हैं NCX इक्वल टू NCY. और इफ नहीं यहीं पर 27 हाँ, कोफिशिएंट ऑफ 2R प्लस 4th एंड R माइनस 2th टर्म आर इक्वल इन 1 प्लस एक्स. 27 भी कर दे रहा हूं ताकि आपको अच्छा लग जाए करे. तो फिर उसमें क्यों नहीं किया आपने सर? अरे भाई वो टर्म्स इक्वल था इसलिए हमें कैलकुलेट करना पड़ा, नहीं तो ये फार्मूला सब जगह नहीं लग पाएगा. वहां पर टर्म्स इक्वल था, टर्म्स, यहां कोफिशिएंट्स हैं, इसलिए 27 में आ रहा हूं. 27 कोफिशिएंट्स हैं, देखना कोफिशिएंट ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 18 में 1 चाहूं तो ओरल कर दूं, 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 18 में 2R कोफिशिएंट ऑफ, चल नहीं करेंगे, 2R प्लस 4th T 2R प्लस 4 इक्वल टू 18C 1 लेस 2R प्लस 3. मैं बताया था ना कि 1 प्लस एक्स में बहुत खुश हो जाना चाहिए, एक्स टू द पावर सेम पावर है ना, x to the power 2R plus 3 and t r minus 2 एक कम करके r minus 3 ना, r minus 2 में से एक कम करेंगे तो r minus 1 नहीं, r minus 2 minus 1 and then x to the power r minus 3 according to question. According to question, coefficients are equal. That means 18C R minus 3 18C पहले ऊपर लिख दो, 2R plus 3 equal to 18C R minus 3. Then NCX equal to NCY, then X plus Y equal to N, इसलिए 2R plus 3 plus R minus 3 X plus Y equal to 18 N. 3 cancel, 3R equal to 18, that means R equal to 6. कितना सिंपल. इक्वालिटी में मैं यही सोच करके उसको किया था तो अच्छा ही किया, नहीं तो वही छोड़ दिया था तो मुझे तकलीफ होती. हाँ, वो आप NCX इक्वल टू N. हाँ चलिए नेक्स्ट 29 तक हो गया बेटा. एक मिनट को कोफिशिएंट, यस 29 हो गया, 29 हो गया, 29 नहीं, ये नहीं हुआ क्या?
शो दैट द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन इज डेवलप करूँ क्या? हाँ ठीक है, 29 कर रहा हूँ, तो ये कौन 27 था, और द कोफिशिएंट ऑफ आर इन द देन ये 32, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड देन 34 करूँगा। देखें नॉर्मली वो क्वेश्चन मैं करता हूँ जो जनरली पूछे जाते हैं। देन 29th ना, 29th, हाँ, शो दैट टू प्रूव एक्स टू द पावर n इज कोफिशिएंट नहीं, अच्छा कोफिशिएंट ऑफ 29, coefficient of x to the power n in the expansion in 1 plus x to the power 2n, 1 plus x is double of the coefficient x to the power n in 1 plus x to the power 2n minus 1, and coefficient of x to the power n in 1 plus x to the power 2n minus 1, then coefficient of first is double of the other. Now करें coefficient of in first यानी ये फर्स्ट में डायरेक्ट मैं करूंगा कोफिशिएंट ऑफ x to the power n, फिर से पूछ लूँ आपको, इन 1 plus x to the power 10, what is the coefficient of x to the power 5? 10c5 sir. In 1 plus x to the power 20, what is the coefficient of x to the power n? 11, 20c11. जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ओरल निकलेगा वो। तो यहां पर कोफिशिएंट ऑफ x to the power n दैट इज इक्वल टू 2ncn, ये होगा यहाँ। और इन सेकेंड coefficient of x to the power n, 29, coefficient of x to the power n in 1 plus x to the power 2n minus 1 equal to 2n minus 1, उसमें भी होगा n, coefficient of x to the power n। ये प्रैक्टिस करने के बाद बहुत ही आसान हो जाएगी। इफ यू हैव नॉट प्रैक्टिस तो अदरवाइज मैं कैसे करता, इसलिए टीचर वो कोई भी बच्चा अगर ऐसे करता और इतना टाइम रहता तो मैं एक पीरियड इसी में करता। एंड देन टू प्रूव 2ncn equal is double of 2n minus 1 cn, यानी that is 2ncn whole upon 2n minus 1 cn। चलिए साहब ऊपर कर रहा हूं फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n, कैसे? अरे NCR फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, नीचे फैक्टोरियल 2n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल फैक्टोरियल r 2n माइनस 1 cn। तो क्या करूंगा, तो 2n माइनस 1 कहीं लिखा हूं कि नहीं? हाँ, 2n माइनस 1 cn, तो इसको 2n माइनस 1 क्या कर दिया हूं ये, दैट इज 2n, अच्छा लिखा तो 2n माइनस 1 cn, तो ऊपर वाला कर रहा हूं फैक्टोरियल 2n अपन फैक्टोरियल n, और नीचे वाला कर रहा हूं फैक्टोरियल 2n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n इंटू 2n माइनस 1 माइनस n। चलिए अब यहां आ जाऊं, हो जाना चाहिए। अगर कहीं गलती नहीं कर रहे हैं और हम क्लियर है कॉन्सेप्ट में, तो क्यों गलती होगी?
अब देखो हम जरा सा नीचे वाला ऊपर ले जाएं, फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n इनटू, अब इसको डिनोमिनेटर, इसके नीचे वाले के डिनोमिनेटर को सबसे ऊपर फैक्टोरियल n इनटू फैक्टोरियल n-1, फैक्टोरियल n-1, ये देखना 2n में से n, हाँ, और नीचे फैक्टोरियल 2n-1। वाह साहब। हाँ, अब देखूं एक n कैंसिल हियर एंड देन जो बड़ा होता है ना फैक्टोरियल में, इसी को रिड्यूस करते हैं। जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 6, तो हम 10 को उतने स्टेप तक ले जाएंगे। तो यहां पर किया फैक्टोरियल 2 है, तो ये बड़ा है इससे, इसलिए 2n बाहर निकाला और इंटू 2n-1 फैक्टोरियल। क्यों? अरे 2n बाहर निकाल दिया, बाकी सब इसलिए किया, कितना हो गया इंटू फैक्टोरियल n-1, ये होल अपॉन, इसको n को हटाऊं, n फैक्टोरियल n-1 इंटू फैक्टोरियल 2n-1, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, n इससे कट गया और 2 प्रूव्ड इज डबल ऑफ द अदर। हमने पहले वाले के कोफिशिएंट को दूसरे वाले के कोफिशिएंट से डिवाइड किया एंड वी गॉट 2, इट मींस डबल। उसके इसके करना ही है केवल, सब ठीक है। 32 आल्सो, बस ये करेंगे। 33 देखूं, 33 भी ऐसे फाइंड एक्स वाई। 34 क्या है, चलिए 34 कर दूं, एपी की चर्चा कर रहे हैं। 34 in the expansion of 1 plus in, एक्सपांसन नहीं लिखता हूं, उसका मतलब यह है in 1 plus x whole to the power n the coefficients of 5th term, 6th term and 7th term। तो coefficients of 5th क्या होगा, इज NC5, ना 5th टर्म यानी NC4, एक लेस करके मैं कर दे रहा हूं, वो बिल्कुल मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि आप कर सकते हैं, लेकिन एक डर लग गया कि आप कहां से करेंगे, कहां से आए। अभी देख ला रहा हूं इन द कोफिशिएंट ऑफ 5th टर्म T5 एक कर रहा हूं, NC4 1, वो इसमें तो आपको बताया था 1 plus x to the power n, 1 plus NC1x, NC2x स्क्वायर, NC3xu, NCnxn, NC0 से शुरू होता है, NC0 मैंने नहीं लिखा, 1 लिखा, तो इसमें NC4 x to the power 4, 1 का पावर नहीं लिखा ना, और T6 NC5 x to the power 5, T7 NC6 x to the power 6। देखो एक एक कम कर दिया और वही x का पावर चढ़ा दिया। 1 प्लस x है तो 1, अब वो उसमें लिखने की बात 1 का नहीं होता, इसलिए डायरेक्ट दूसरे वाले पर पावर चढ़ाते हैं। अब क्या कह रहा है, आर इन AP दीज आर इन AP। अगर AP में है तो व्हाट इज द कंडीशन इफ 3 टर्म्स आर इन AP, तो क्या होता है, द मिडिल टर्म 6 ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म इक्वल टू, ये होता है ना कि ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड, देन 2 into T6 इक्वल टू, ये AP की कंडीशन है,
b इक्वल टू a प्लस सी बाई टू, एंड ट्वाइस b इक्वल टू a प्लस सी, देन और वो भी कोफिशिएंट्स, ये होता टर्म सारे पे, देन 2b इक्वल टू a प्लस सी. तो फॉर कोफिशिएंट्स 2 into NC6 NC5 बीच वाला है ना, NC5 इज इक्वल टू NC4 प्लस NC. क्यों आपने छोड़ दिया सर, ये बाकी सब x वाले? अरे यार कोफिशिएंट्स की बात कर रहा है, इसमें केवल कोफिशिएंट. अब बेटा हम ये देखें कि क्या पूछ रहा है, कुछ पूछ रहा है कि उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ n. ऊपर कहाँ है? अच्छा हाँ, इसी में. हाँ यस यस यस, हाँ नहीं तो नीचे ही होगा वो 30. हाँ हाँ, विच क्वेश्चन 34. तो नीचे क्या है, उसके नीचे होगा ना, फॉर विच दिस, मैंने 34 निकालिए ना तो पता चले. 34 निकालिए. हाँ 34. फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ n पूछ रहा है, वहां से नहीं पता चलेगा बेटा. n तो n चाहिए, ये यहां पर फाइंड n. तो 2 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल n माइनस 5 इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 4, बिल्कुल फार्मूला, प्लस फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 6 एंड फैक्टोरियल n माइनस 6. देखिए NCR फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, बिल्कुल वैसे ही n माइनस 4 NC6 फैक्टोरियल n. तो फैक्टोरियल n तो सब में कॉमन है, कैंसिल. देन 2 अपॉन और वहां तक मैं तोड़ रहा हूं जहां तक मेरा काम चले. तो ये देखिए n माइनस 5 n माइनस 4 n माइनस 6, मेरा मन है n माइनस 4 को तोड़ूंगा और इधर 6 को तोड़ूंगा. इसको तोड़ दे रहा हूं. 5 फैक्टोरियल 4 n माइनस 5, आप कह रहे हैं, और देखो इंटू n माइनस 6. अरे n माइनस 5 कौन बड़ा है? n माइनस 4 ना. n माइनस 4 यानी n माइनस 4 बड़ा है, तो क्यों इसको तोड़ूं बेटा? यहां पर हटाना मेरी मजबूरी है. देन अब तो कर सकते हैं, हमको आपको कष्ट नहीं देना चाहिए. 2 अपॉन 5 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू n माइनस 4 सबसे बड़ा है. आपको दिख नहीं रहा होगा n माइनस 4 ना सबसे बड़ा. अरे भाई लेस हो रहा है ना, तो उसको जब कम रिड्यूस करेंगे तो n माइनस 5 आ जाएगा, n माइनस 6 आएगा. तो फैक्टर 5 n माइनस 5 रहने दे रहा हूं, इसको रहने दे रहा हूं, इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 और n माइनस 4 n माइनस 5 n माइनस 5 n माइनस 6 n माइनस 6 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 7 प्लस 1 अपॉन 6 इंटू 5. इसको फैक्टोरियल 4 ज्यों का त्यों रखा हूं, देखना 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 6. हाँ n माइनस 6 वहां रखने दिया हमको, तो इसको और बढ़ना था. n माइनस 5, इसको भी थोड़ा और बढ़ा दे रहा हूं, n माइनस 5 n माइनस 6. अब ये n माइनस 6 फैक्टोरियल n माइनस 6, इसको भी फैक्टोरियल कर दे रहा हूँ. जरूरत क्या है, इसको यहीं पर कर दे रहा हूँ फैक्टोरियल.
देखिए एन, इसको रहने दे रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कटना है उसको, और प्लस n-4 n-5 ठीक है, यहाँ कर दे रहा हूँ, और वहाँ पर 1/6 6 into 5 और फैक्टोरियल n-6 सब में कट गया, और क्या कटा, और क्या कटा कि फैक्टोरियल 4 और यहाँ पर फैक्टोरियल 4, क्योंकि फैक्टोरियल 6 था, ये फैक्टोरियल 4 कट गया, इसके फैक्टोरियल 4 से इसके फैक्टोरियल से। अब 2/5 इंटू n-5 इज इक्वल टू 1/n-4 n-5 इक्वल टू प्लस 1/6 इंटू 5। बेटा ये सॉल्व कर लेना, ये सॉल्व कर लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, यू विल फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, दिख रहा है ना, n² होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन फाइंड n which will surely have two values